Festivals in India have always been the most memorable and a favorite part of a traveler's journey through different countries and continents. Being the colorful nation, India celebrates the most vibrant harvest festivals. The first yield of the crop is a delight for the people, and they celebrate it cheerfully. Let us take you to Chhattisgarh to enjoy Harvest Festival with full vigor and joy. चिरैया तोरे से मिलन आया, ना भागल लागे बड़ी दया लागे।
What a rocking performance! Let us boost our farmers as they are the valuable asset of our country. Give a huge round of applause. After the energetic and sweet performance of our young kids, let us take you to the world of drama. Each of us possesses a system of core beliefs and values that motivates attitude and action. Values provide ethical treatment towards human beings. It plays an essential role in every student's life. They help to build a positive character with traits such as compassion, respect, and humility. We at the Omni School focus on the character development and positive outlook. Let us visualize it through a skit performed by our students. Education is a lifelong process of development of one's personality, which starts from the school. It is a school that builds the base for everything. That's why school plays a significant role in providing value-based education and moral education. It aims at training the students to face the outer world with the right attitude and values. It's a process of overall personality development of a student. It includes character development, personality development, citizenship development, and spiritual development. Nelson Mandela rightly said, education is the most powerful weapon through which you can change the world. In today's time, where there is a huge crisis of moral values in society, value-based education proves out to be the solution. पापा पापा जल्दी कीजिए, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बस हो गया रेडी। ओके चलो जल्दी। पापा रुकिए रुकिए, आप हेलमेट लगाना तो भूल ही गए। हमारे स्कूल में सर रोज हमें ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। Wait, please stop. I think someone is injured. Instead of taking him to the hospital, you all are clicking pictures. We have called the ambulance. It is about to arrive. By the time the ambulance will come, he will be dead. It would be better you help us to take him to hospital in a vehicle. Ma'am, this man is bleeding so much due to an accident. Please treat him fast. Well done, boys. Well done. You both did a great job as you brought him to us on time. Otherwise, it could have been very difficult. In which school do you study? We study in the Omni School. You have done your job. Now please go to your school without worries. Rest. We will complete all the formalities. Thank you so much. It takes about 3 seconds to strap on your seat belt. That is less time than it takes to tie your shoe. So always wear seat belt while driving. बाय पापा। अरे पापा एक मिनट रुकिए रुकिए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आजकल मैं अपने बच्चे में बहुत बदलाव देखने लगा हूँ। वह मुझे हेलमेट की याद दिलाता है, ट्रैफिक सेंस की बातें करता है। मुझे याद है जब से स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया था, तब से वह मेरे रोज चरण स्पर्श करता है। उसमें इस तरीके के बदलाव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी होती है जब बच्चे अच्छी बातों का पालन करते हैं।
सर आगे, सर आगे। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर क्लास। गुड मॉर्निंग, सभी बैठ जाओ। बहुत अच्छा विशेष, बहुत अच्छा। क्लास हो या घर, इसकी साफ सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे सफाई के मिशन में सहयोग करते हैं। सर मे बी कम? यस प्लीज कम। सर, हमने ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में कविता बनाई है, हम इसे सुनाएं? यस सुनाओ। अगर सुरक्षित रहना है तो पटरी पटरी चलना है, अगर सुरक्षित रहना है तो पटरी पटरी चलना है। सड़क सुरक्षा के नियमों का, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन हरदम करना है। अगर सुरक्षित रहना है तो पटरी पटरी चलना है। मोटरसाइकिल या हो स्कूटर हेलमेट पहनो कस कर तुम, मोटरसाइकिल या हो स्कूटर हेलमेट कस कर पहनो तुम। अगर सुरक्षित रहना है तो पटरी पटरी चलना है। रक्षा साधन अपनाओ तो दुर्घटना से बचना है, रक्षा साधन अपनाओ तो दुर्घटना से बचना है। सड़क सुरक्षा के नियमों का, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन हरदम करना है। अगर सुरक्षित रहना है पटरी पटरी चलना है। छक पकैया बात हमारी सुन लो भैया, जीवन अपना दुख को बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल ना जाना। ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना सूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र है मूल। मुड़ना हो तो हाथ देकर ही मुड़ना, सर को बचाना हो तो हेलमेट जरूर पहनना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल को निकलने देना। गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। रफ्तार पे ब्रेक लगाना, ना गाड़ी तेज चलाना, नंबर प्लेट सही रखना, ना प्रेशर हॉल लगवाना। रिवर्स में लेते हुए गाड़ी को बजर जरूर बजाना। साइड मिरर पर रखना नजर जब भी हो ब्रेक लगाना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। क्योंकि इंदौर शहर हमारा है, इसे पॉल्यूशन फ्री रखना भी तो कर्तव्य हमारा है। वैसे भी शोर शराबे से नुकसान तो हमारा ही है। तो भैया चले, रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र है मूल। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र है मूल। शाबाश, बहुत अच्छा। नाउ यू बोथ गो टू योर रिस्पेक्टेड क्लासरूम। अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, कल का होमवर्क कितने बच्चों ने किया? सर मैंने किया। सर सुयश ने नहीं किया। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे सर, घर में लाइट ही नहीं थी। घर में लाइट नहीं थी तो दिया लगा लेते। सर, माचिस पूजा घर में थी। माचिस पूजा घर से ले लेते। सर, नहाया नहीं था और बिना नहाए पूजा घर नहीं जाते। तो नहा लेते। पानी नहीं था तो बोरिंग चला लेते। सर, अभी तो कहा कैसे चलाता बोरिंग, लाइट ही नहीं थी। तुम्हारे पास हर टालम टोल का जवाब है। कल होमवर्क करके आना। बैठ जाओ। शाबाश विशेष, आपके सब सवाल सही है। बेटा ये क्या किया तुमने? 5 - 5 2 कैसे? अच्छा बताओ, मैंने 5 पूरियां बनाई, तुमने 5 पूरियां खा ली। अब बताओ क्या बचा? छोले छोले छोले, ओनली चटपटे छोले। आज से तुम एक्स्ट्रा क्लास में रुकना। बहुत अच्छा।
अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने तो सब सवाल सही किए और इसके लिए तुम्हें शाबाशी भी मिली। सर मैंने सब सवाल गूगल से कॉपी किए और सर अब मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी चीटिंग पर भी आपने मुझे शाबाशी दी। सर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इनके लिए 2 बार तालियां बजाइए। 2 बार इसलिए क्योंकि एक तो इसने सच का पालन किया और दूसरा इसे अपने गलती का पछतावा है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये कभी चीटिंग नहीं करेगा। अच्छा गुट्टी, तुम बताओ, मैंने तुम्हें 10 सेब दिए और तुमने 5 सेब खा लिए। अब बताओ कितने सेब बचे? सर पूरे के पूरे 10 बच गए। वो कैसे? सर आप डांटोगे तो नहीं? नहीं सर मुझे तो सेब पसंद ही नहीं, मुझे तो आम पसंद है, आम। ये सिखाया मैंने तुम लोगों को, ये सब सिखाया मैंने तुम लोगों को। क्या सिखाया मैंने तुम लोगों को? सर आपने सिखाया है कि इफ यू विल स्टडी यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सर आपने हमें और भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। सर आपने हमें यह सिखाया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो कीप प्रैक्टिसिंग, वन डे यू विल गेट सक्सेस। सर आपने हमें यह सिखाया है कि हमें हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए, न कि सिर्फ स्कूल में, हमें घर के बाहर और सभी जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए। सर आपने यह सिखाया है कि रोज एक्सरसाइज करो, अगर हमें हेल्दी बनना है तो रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सर आपने हमें सिखाया है कि लिसन टू योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सर आपने हमें बहुत ज्ञान दिया है, हमें हमेशा मम्मी डैडी का कहना सुनना है। अरे तो आप लोग इन बातों को अमल में क्यों नहीं लाते? सर अब जरूर लाएंगे, सर जरूर लाएंगे। यस सर, यस सर। और आप सब भी इन बातों को अमल में लाइए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। थैंक यू। इंदौर स्वच्छता के नाम पर नंबर 1 है, ये हम सब जानते हैं। जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है। द ओमनी परिवार आपसे एक अनुरोध करता है कि यातायात के नियमों का पालन करके इंदौर को यातायात के नियमों के लिए भी प्रथम बनाएं। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभिका पुराणिक, मैं अन्वेषा राठौर आप सभी को प्रणाम करते हैं। नारी क्या है? नारी तू अबला नहीं सबला है। नारी तू सृष्टि का निर्माण है। नारी तू सबकी पहचान है। अपमान की नहीं सम्मान की अधिकारिणी है। भेदभाव सहकर भी हर क्षेत्र में अग्रणी है। जब कोई तेरी बराबरी कर नहीं सकता, तेरी तरफ आँख उठाता है, उस दिन वह शख्स अपने मनुष्यता को मार डालता है। नारी फिर भी तू डरती नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ती है, बेखौफ होकर आगे बढ़ती रहती है, बेखौफ होकर आगे बढ़ती रहती है। हाँ, नारी की क्या क्या पहचान दें? सीमा पर जाना, देश की सीमा पर जाना हो या लड़ाकू विमान उड़ाना हो या फिर परिवार की जिम्मेदारी निभानी हो, नारी सभी कार्य बहुत अच्छे से निभा रही है। जल, थल, वायु, सेना में, शिक्षा में, अंतरिक्ष में, चिकित्सा के क्षेत्र में सभी नारी जगह अपनी पहचान बना रही है। इन सभी के साथ साथ नारी मातृत्व का उत्तरदायित्व भी बड़ी प्रेम पूर्वक निभा रही है। जी हाँ, नारी की क्या क्या पहचान दे? नारी बेखौफ होकर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। यही संदेश देती है हमारी अगली प्रस्तुति। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली बेखौफ प्रस्तुति का। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो
तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। झूले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। पर खोल के हो आजाद, डरना इस आसमान से। कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहान से। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएंगी। इरादों को शमशीर कर, ये खुद ही टूट जाएंगी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मेरे हम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे,
तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है। शिकस्त होके चित पड़े जिसने भी आजमाया है। चीर के फलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है। सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। Every soldier is a true patriot and is always ready to lay down his life in the service of the motherland. Army not only fights in war, but also takes care of the rescue operations when natural calamities occur like cyclones, earthquakes, landslides, etc. Let us see the selfless and periodic efforts of our soldiers through the next act. बधाई हो सर, आपको लड़का हुआ है। नहीं सिस्टर, लड़का नहीं, ये कहिए कि भारत का एक वीर सपूत पैदा हुआ है। अरे बच्चे, ये क्या, आप रोने लगे? चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप हो जाओ बेटा। अरे मैम, ये क्या, मुझे इस हॉस्पिटल में इतना समय हो गया, मैंने हमेशा खुशी के मौके पर लोगों को मिठाई बांटते हुए देखा है, पर आपके पति सभी को इंडियन फ्लैग बांट रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता है, यह जब कभी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो सभी को इंडियन फ्लैग बांटते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार ही अपने देश से किया है। और आज तो इनके लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे घर में हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले एक वीर ने जन्म लिया है। तो इस भारत के लाल का नाम क्या होगा? इसका काम ही इसके नाम की पहचान होगा, इसलिए इसका नाम वीर होगा। सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके मैं चमकूंगा माँ। कमजोरों को मैं बल बनके कंधा दूंगा मैं, हिम्मत दे माँ। शोला बुझने को बारिश होकर मैं बरसूंगा, ये वादा है माँ।
सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सर, कमांड से मैसेज है। ब्रावो टू अल्फा। ओवर एंड आउट। मेरे हिंदुस्तान के वीर, आज वो दिन आ गया है जहां तुम्हारी हर गोलियों पर दुश्मनों का नाम लिखा है, क्योंकि दुश्मनों ने देश पर हमला कर दिया है। क्या तुम जंग के लिए तैयार हो? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। माँ, मैं भारत माँ के लिए आज अपनी पहली जंग लड़ने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं देश की रक्षा कर सकूं। वीर बेटा, मेरा और तेरे पिता का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगी कि तू इस जंग में विजयी होकर लौटे, और तेरे वापस आते ही मैं खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। गुड न्यूज सर, टीकरी चौकी पर हमारा कब्जा हो गया है सर। हम लोग जीत गए हैं। कुणाल जीत सिंह ने टीकरी चौकी पर जीत हासिल कर ली है सर। साथियों, 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 साथियों। माँ, तुम्हारे और पिताजी के आशीर्वाद और प्रार्थना से मैं भारत माँ की रक्षा करने में कामयाब रहा। माँ, कामयाब रहा। बेटा वीर, तूने आज मेरा और तेरे पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अब मैं खुशी से तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ बेटा, तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ। और इस बीच उत्तराखंड के केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पहाड़ों से गिरे मलबे में 5 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मलबे में यहां पर 5 लोग दब चुके हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। उत्तराखंड के इस जल प्रलय के बीच सेना के जवानों ने फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर दिया है। खराब मौसम के खलल के बाद भी सेना पूरी मुस्तैदी से राहत के काम में जुटी है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। माँ, ए माँ, उठ ना माँ, माँ। जिंदगी में अगर तुझे अपने परिवार और देश में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू सबसे पहले अपने देश को चुनना बेटा, अपने देश को चुनना। जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई, उस वादे के लिए मैं खुद गर्ज भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। से बना हूँ मैं, खाक ही बन जाऊंगा, सीने में लेके आग में वक्त से लड़ जाऊंगा। खाक से बना हूँ मैं, खाक ही बन जाऊंगा, सीने में लेके आग में वक्त से लड़ जाऊंगा। दिल के भंवर में है डूबा मेरा सफीना, हाँ सफीना। वो दुआ है मेरी रब से की, थामे मुझको यूं ही रहना, यूं ही रहना, रहना। जिंदा
शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं चल रहा था दिशाहीन, शिव तुमने मुझे राह की दिशा दी। मैं जी रहा था बेवजह, शिव तुमने मुझे जीने की वजह दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह माया को छोड़ मैं तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूँ। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैं भटक रहा था इधर उधर, शिव तुमने मुझे अपने में समा लिया। स्वयं को खोकर मैंने तुमको पा लिया। मेरा अस्तित्व शिव तुमसे है, मेरा होना ना होना शिव तुमसे है। तुम मुझ में हो और मैं तुम में खो रहा हूँ। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो आइए अगली प्रस्तुति देखते हैं, शिव स्तुति। हे फ्रेंड्स, कैसे हो? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही। बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं यार, सब कुछ होने के बाद भी मन को शांति नहीं है। हम हमारी डांस फील्ड में कुछ यूनिक करना चाहते हैं। हाँ, बट समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो? देखो, डांस की शुरुआत भगवान शिव से हुई है। तुम लोग उनकी आराधना करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। तुम सब भगवान शिव को अपने अंदर समाकर तो देखो, तुम्हारे मन की सारी अशांति शांति में बदल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ
निनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम invite our school academic coordinator, Mrs. Priyashri Dubey, to propose vote of thanks. Please, ma'am. I, Priyashri Dubey, on the behalf of the Omni School and the entire fraternity of this institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Sri Satyanarayan Jettiya ji, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear his thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I also extend my heartfelt thanks to our patrons, Sri Sumit Suri sir, Sri Hemant Suri sir, and motherly figure to all of us, Mrs. Nurmal Suri ma'am, who are the driving force and the source of energy for the Omni School fraternity. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path.
My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. A special mention to our respected principal, Mr. Satish Niranjani ji, and academic director, Shri S.N. Patwardhan sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. Without your guidance, the event would not have been possible. I need to mention my deepest sense of appreciation and also extend thanks to all the staff members for their enormous cooperation within the organization of this gala event. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting, light arrangement team, and all the musicians and housekeeping staff. Our sincere gratitude goes to all the parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children would not be able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. Finally, I would like to thank our budding rock stars that made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. All the programs were very good and enjoyed by all of us. I hope so. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this annual day celebration memorable for all of us. On behalf of my school, let me thank all the students, parents, teachers, and everybody present over here right now at the Omni School. Our school students are not only good at academics, but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Thank you, everyone. I also thank all the Didis and Bhaiyas, those who have worked very hard day and night for the completion of the event. I request all of you to rise at your places for Vande Mataram. I request the parents not to move. Please stand at your places for Vande Mataram.
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे